Welcome, my dear students, for another session, an excited session, a learning session to learn the concepts of principles of management. हमने ऑलरेडी मोटिवेशन के पर्सपेक्टिव में कुछ थ्योरीज को लर्न किया, कुछ कॉन्सेप्ट्स को लर्न किया. हम उसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन शायद आपके जहन में ये सवाल पैदा होता हो कि ये 60s की थ्योरीज, और ख़ास तौर पर ऐसी थ्योरीज के जो शायद कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में, ऐसे हालात में, ऐसे कल्चर में डेवलप हुई कि जिनका पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बहुत ज़्यादा मुताबिकत ना हो. तो हाउ आर वी गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस? हाउ आर वी गोइंग टू लर्न लेसन्स फ्रॉम दिस while working in the Pakistani organizations? देखिए, no matter where people work, no matter what kind of organizations they are going to be involved in, people are people. Humans have personalities. Humans have perceptions. Their belief, their attitude, their value system, certainly it affects their behavior. तो आप इन थ्योरीज को, ये तो हो सकता है कि 100% इंप्लीमेंट ना कर सके, लेकिन देखिए, ये कॉन्सेप्ट्स आपको इसलिए लर्न करना है कि whenever you come across with that kind of situation, whenever you come across with that kind of culture, or whenever you come across with that kind of workforce, so there is a wide range of concepts in front of you. You can pick them, you can choose from them, you can make your own recipe, you can mix them together, and purpose is, objective is that you become a successful manager. Regardless you work in the manufacturing sector, public sector, private sector, service sector, education sector, regardless in whatever sectors you are going to work in, these concepts, these theories, these postulates, these principles gives you a whole range of concepts that you can choose from. और देखिए, अभी मैं आपके सामने आपके कैरियर के पर्सपेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि आप ये जो कोर्स लर्न कर रहे हैं, आप ये जो डिग्री प्रोग्राम जिसमें आप एनरोल हैं, ये भी तो आपकी एक नीड है कि इस डिग्री प्रोग्राम में एनरोल होने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, what are you going to do with it? Why are you taking this course? Why are you enrolled in this degree program? Do you want to look for a job? Of course, that is your need. So how would you feel motivated to fulfill that need? And then, while you are motivated, while you are fulfilling your needs, what are the factors that you feel motivated? I'll give you a list. You choose your list, you make your list, and you will reprioritize different conditions, different variables, different situations, and you make your own career, you make your own milestone, you make your own pathway. तो ये कॉन्सेप्ट्स अपनी जगह पर आपको गाइड करते हैं, आपको डायरेक्ट करते हैं, आपको एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि देखिए, मुख्तलिफ लोगों ने काम किया, मुख्तलिफ मैनेजर्स इन कॉन्सेप्ट्स को यूज किया. These are the lessons learned. These are some of the practices. While you interact with people, while you work in the organization, how are you going to develop your own recipe? How are you going to develop your own process? And how are you going to develop your own tension-free work environment? Remember, tension-free. That is what we are looking for. And tension-free, once again, will depend on your personality, my personality, people working around, group, teams, other people, you as a person working together. How do you achieve your objectives? How do they achieve objectives? And in total, we develop a kind of tension-free work environment. We feel motivated, we fulfill our needs, we keep on coming back again and again to the office, to the place, to the hospital, to the factory, to an organization, that we contribute our work and we try to receive
those rewards, those recognitions which will help us to fulfill our needs. लास्ट सेशन में हमने नीड्स थ्योरी के अलावा कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव में, प्रोसेस पर्सपेक्टिव में इक्विटी थ्योरी की बात की थी. एंड आई थिंक यू रिमेंबर वी सेड you compare your outcomes to the input versus the outcome and the input of other people. It may create equity or it may create a situation of inequity. याद है मैंने जिक्र किया था ओवर रिवॉर्ड एंड अंडर रिवॉर्ड, दोनों सूरतों के अंदर इनइक्विटी क्रिएट होगी. ओवर रिवॉर्ड की सूरत में वन वुड बिकम लेथार्जिक, लेजी. जी ठीक है, हम थोड़ा सा भी काम करेंगे तो रिवॉर्ड तो ठीक मिल रहा है. ओवर रिवॉर्ड, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड. इट्स ए काइंड ऑफ डीमोटिवेशन. इसी तरह से अंडर रिवॉर्ड, आउटकम इज मोर, आउटपुट इज गिवन बाय यू, परफॉर्मेंस इज गिवन बाय यू, इज मोर देन समबडी एल्स, while you compare that the input is same. That also lead to demotivation. तो हमें देखना यह है कि फिर ये concepts learn करते हुए, while we motivate ourselves, my dear students, we have to motivate others as well. Groups, teams, peers, colleagues, supervisors, foremen, operators, managers, all of them, different levels, in a way that we perform at the best level. We excel in a way that it brings rewards for us at the individual level as well as for the organization. It's a win-win kind of situation which we like to develop by learning these concepts. आइए मैं फिर आपसे शेयर करता हूं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि why are you taking this course? Why are you trying to complete this degree program? There must be an objective. I'm sure there is. क्यों जी, है ना? और अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो नीड क्या है? आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि साहब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं अकाउंटेंट बनना चाहता हूं, मैं एक अच्छा मैनेजर बनना चाहता हूं. आई वुड लाइक टू बी कॉल्ड ए गुड solution provider. So you have a list of needs you would like to fulfill by getting this degree. You would like to enter into a career. So let's talk about your career then. What are your objectives? Would you like to manage your career? Remember, whenever we speak manage, it means you will set the direction, plan. You will make decision. And then you will organize your resources. Once you organize your resources, direction is set, decision is made, long-term and short-term game plan is in place. Let me ask this question from you, then what do you want from your job? Why would you like to work? There must be a number of reasons. Somebody might say कि जी मुझे अपनी फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल करने के लिए मुझे तनख्वाह चाहिए. कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब मुझे तो प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए. कुछ लोग कहेंगे कि मुझे ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए, ऐसे कलीग्स चाहिए, ऐसा बॉस चाहिए जो मुझे एनकरेज करने वाला हो. एंड स्पीकिंग ऑफ एनकरेजमेंट, रिमेंबर व्हाट डिड वी डिफाइन अबाउट मोटिवेशन? हमने ये कहा था मोटिवेशन इज अ फोर्स which will energize you. It's a force which will energize others. It will set a direction. It will keep you leading, directing to a path, to a direction which will certainly help you give good performance, excel in the best way. You contribute. You are called a good manager, effective manager. तो मैं आपसे शेयर करता हूं कि दूसरे लोग क्या कहते हैं. परसेंटेज वाइज, हाउ डू पीपल, अदर पीपल थिंक कि जी जॉब जब हम करना चाहेंगे तो क्या फैक्टर्स होंगे जो हम जॉब करते हुए अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना चाहेंगे.
अपनी डिजायर्स को, अपनी नीड्स को हम कैसे फुलफिल करेंगे? सैलरी इज नॉट द ओनली इशू, इट्स वन ऑफ द इशू. लेट्स लुक एट द रीजंस. रीजन नंबर 1, I would like to work with good co-workers. देखिए 71% of the people, जब ये रिसर्च की गई, क्वेश्चनर फिल करवाया गया, रिसर्च की गई, लोगों से पूछा गया, वो लोग जो काम कर रहे थे, people who were in the jobs after getting their degrees, 71% of them said, we would like to work in a kind of environment, we would like to work in a kind of organization where there are good co-workers. 71%. सैलरी की बात तो नहीं आई. इसका मतलब यह है कि देखिए, दिन में आपको 8 hours a day, 1/3 of your life. Am I right? Young life, professional life, energetic life, dynamic life, best part of your life. 1/3 आप ऑफिस में गुजारते हैं, कंपनी में गुजारते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में गुजारते हैं. लोगों का कहना यह है कि 71% लोगों ने यह कहा कि वी वुड लाइक टू सी गुड पीपल. अच्छा देखिए, यू एक्सपेक्ट पीपल शुड बी गुड टू यू, लेकिन यह भी तो मतलब है ना इसका कि आप दूसरों के साथ भी अच्छे हो. इट्स अ रेसिप्रोकल बेसिस. यू वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, you want to be respected? My dear students, formula is very simple. First, you respect others. They will pay you respect. Reason number 2, 68% ने कहा, हमें साहब pleasant working environment चाहिए, pleasant milieu. Pleasant working environment. Comfortable. अच्छा, comfortable का मतलब ये नहीं कि कोई बेड्स वगैरह हो, हम वहां आराम कर सकें. No. Pleasant working environment means we should feel productive. We should feel energetic. मैंने कहा था ना, tension free. Less tension. We will be more productive. We will be more performing. We will giving our best to the company. Pleasant working environment. अच्छा, pleasant working environment, ये बात ठीक है आपकी कि शायद एयर कंडीशनिंग से, टेम्परेचर को रेगुलेट करने से, लाइट को रेगुलेट करने से, ये भी कुछ फिजिकल पैरामीटर्स हैं, आप इसको प्लेजेंट वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर शामिल कर सकते हैं. नॉइज का लेवल क्या होगा, फ्यूम्स का, स्मोक का लेवल क्या होगा, यह भी इसमें शामिल होगा. लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो 68% जिसकी बात कर रहे हैं, इन तमाम चीजों की बात कर रहे हैं, प्लस ये कह रहे हैं कि मेरा बॉस, मेरे कोलीग्स, मेरे सबऑर्डिनेट्स, देयर कैन बी प्लेजेंट वर्किंग एनवायरनमेंट. अच्छा, जब आप प्लेजेंट की बात कर रहे हैं तो देखिए, प्लेजेंट वर्किंग एनवायरनमेंट में आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है. आप कंपेयर कीजिए जरा, जब मूड आपका ऑफ हो एज कंपेयर जब मूड आपका ठीक हो, दोनों सूरतों के अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ता है. तीसरा फैक्टर, चैलेंजिंग वर्क, स्पेशली पीपल लाइक यू, यंग पीपल, प्रोफेशनल मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स, marketeers, IT specialist, system analyst, solution providers, hospitality dealing people. All these kinds of people who are providing services, they're professionals. They would like to see challenging work. 65% ने कहा कि देखिए, काम बोरिंग नहीं होना चाहिए. It should be a kind of work which should intellectually challenge us. It should increase our potential. अभी भी सैलरी की बात नहीं आई. चौथे नंबर पर बात आ रही है फ्लेक्सिबल आवर्स. इसका क्या मतलब है? देखिए, टाइम तो ऑफिस का 8 to 5 है, लेकिन आई विश इफ समडे आई कैन कम लेट एट 10 एंड आई कैन लीव एट 7. अगर मेरी कंपनी मुझे फ्लेक्सिबल आवर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, काम तो मैं करूंगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं सुबह थोड़ा लेट उठते हैं, खासतौर पर प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव में, लॉजिक के पर्सपेक्टिव में, कहते हैं जी रात को लेट आवर्स में हमारी लॉजिक ज्यादा अच्छी काम करती है. देखिए, अब मुश्किल होगा, रात को तो हम ऑफिस नहीं ऑन कर सकते. हां, यह जरूर किया जा सकता है, वी कैन गिव यू फ्लेक्सिबल, यू कैन टेक होम, डिलीवर द वर्क थ्रू नेट,
नो प्रॉब्लम, फ्लेक्सिबल आवर्स। 54% ने कहा फ्लेक्सिबल आवर्स। अब आप मुझे ये बताइए, सैलरी, हाई सैलरी, ये भी तो एक इश्यू है। इस सर्वे में सैलरी कम से कम चौथे पांचवें नंबर पर तो नहीं आई, लेकिन बहरहाल डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ कंट्री, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी आर वर्किंग, सैलरी इज एन इश्यू। मनी इज इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट मनी इज रिक्वायर्ड टू बाई एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो इसको ओवररूल ना कीजिए, इग्नोर ना कीजिए। जो आपका ड्यू राइट है, स्पीक फॉर इट, स्टैंड फॉर इट। हाई सैलरी, यस, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। So my dear students, these are some of the reasons why you would like enter in the job and how would you like to prioritize them. आप खुद बैठिए, सोचिए किस कंपनी में आप काम करना चाहेंगे और फिर इन कंडीशंस में से क्या कुछ आपको भी अपील करती हैं। बल्कि आप जिस क्लास में बैठे हुए हैं, आप जरा 4-4, 5-5 का ग्रुप बनाकर डिस्कस कीजिए और आप देखिएगा आप सबकी ये प्रायोरिटी लिस्ट डिफरेंट होगी। कोई शख्स कहेगा नहीं साहब, मुझे फ्लेक्सिबल आवर्स जो है मेरी रिक्वायरमेंट नंबर 1 है, इट्स माई नीड नंबर 1। दूसरा कहेगा नहीं साहब, मुझे तो आई एम कंसर्न मोर अबाउट द सैलरी। तीसरा कहेगा आई एम लुकिंग फॉर प्लेजेंट वर्किंग कंडीशन और मैं 5,000 रुपए कम सैलरी पे भी गुजारा कर लूं। सो आई थिंक देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। पीपल आर डिफरेंट, पर्सनैलिटीज आर डिफरेंट, needs are different. All what we are learning here is you put them together, you try to develop a kind of work environment in which people feel motivated to come back to the office and give you the best of them. Remember, manager is the one who gets the work done with the help of others and through the help of others. जब आपको दूसरों से हेल्प लेनी है तो आपको फिर अपने आप को भी मोटिवेट करना पड़ेगा, दूसरों को भी मोटिवेट करना पड़ेगा। तो आइए फिर कुछ और थ्योरीज लर्न करते हैं, खासतौर पर प्रोसेस पर्सपेक्टिव की इक्विटी के बाद आइए देखते हैं फिर और क्या थ्योरीज हैं। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी नंबर 2। फिर हम गोल सेटिंग थ्योरी के बारे में लर्न करना चाहेंगे कि ये किस तरह से फिर आपको मोटिवेट करेंगी और कैसे आप अपने आप को और दूसरों को मोटिवेट करेंगे। और प्लीज कीप इन माइंड, these are cognitive theories. In other words, you will observe, you will gather the information, you will process, and you will make decision. Expectancy theory. ये theory ये कहती है, this theory argues that we consider 3 main issues to feel motivated. Issue number 1, वो क्या है? I would like to relate my effort with my performance. How much effort did I put in? What was the performance? Effort, performance, relationship. दूसरा इश्यू इस थ्योरी के अंदर यह है कि वो जो मैंने परफॉर्म किया, परफॉर्म तो मैंने किया, I've done my job. I put my knowledge into action. I worked according to the plan. I've consumed resources. मैं दफ्तर में बैठा रहा 8 घंटे, यूटिलिटीज भी सारी मैंने कंज्यूम की, लेकिन सवाल यह है कि परफॉर्मेंस आउटकम के साथ कैसे रिलेटेड है। देखिए, गोल्स वर सेट, वी वर लुकिंग फॉर सर्टेन आउटकम्स। मसलन हमने ही कहा था कि सेल्स का टारगेट इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर की निस्बत 8% ज्यादा होना चाहिए। डिड माई परफॉर्मेंस हेल्प्ड टू रेज द टारगेट? सो परफॉर्मेंस, आउटकम, दीज हैज टू बी रिलेटेड। और तीसरा इश्यू माय डियर स्टूडेंट्स इस थ्योरी के पर्सपेक्टिव में यह है जिसको हम कहते हैं वेलेंस। हम इन तीनों को देखना चाहेंगे कि किस तरह से ये एक सिचुएशन डेवलप होती है और ये थ्योरी पर आपको बताती है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जब मीट करती हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस जब मीट होती हैं, हाउ डू यू फील मोटिवेटेड। और बिल्कुल उसी तरह से दूसरे लोग भी देख रहे होंगे, वो भी उसी तरह से कोरिलेट कर रहे होंगे। तो सिर्फ ये नहीं कि आप बॉस हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, दूसरों की भी हाई हैं।
everybody wants to get its own due share. So this means we will put our effort, we will perform at a given level, but then these three issues should be related together: effort performance, performance outcome, and the valence. Let's see effort performance issue. Our assessment of our efforts, यानी हम assess कर रहे हैं अपनी efforts को, that will lead to the required level of performance. क्या probability है, कितनी efforts मुझे put in करनी है? Remember we talked about intensity, level of effort which I put in, which will lead to the given level of performance. So expectancy number one is, what is the relationship between effort and performance? How much effort is required to give a performance which will help to achieve the goal, which will keep me motivated? Number two, performance outcome. This is again an assessment. This is again a process in your mind. You make a decision that, all right, my performance, how would it lead to the outcome? यानी मेरी परफॉर्मेंस जो है, जो मैं परफॉर्म कर रहा हूं, क्या वो उस आउटकम, उस गोल को अटेन करने में कैसे हेल्प कर रही है? Whatever I perform, did I help the organization 100% goal achievement, 90% goal achievement या 50% goal achievement? तो देखिए, अगर 50% goal achievement है, टारगेट 50% अचीव हुआ, तो इसका मतलब है कि बाकी 50% परफॉर्मेंस जो है वो तो वेस्टेज हुई. तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के अंदर ये दूसरा फैक्टर है जो हम कंसिडर करते हैं. Here comes the third one. Instrumentality. What is making us and what is trying to help us to become instrumental? This is a perceived relationship. Perceived. You're thinking about it. You are perceiving it. It's a perceived relationship between performance and rewards or outcomes. कि जो मैंने परफॉर्म किया, उसकी रिलेशनशिप रिवॉर्ड या आउटकम के साथ क्या हुई? तो इसका मतलब यह हुआ कि मोटिवेशन इन दिस केस is a complex interactive phenomena which is depending upon effort, performance, outcome, reward, and all these are relating with each other. I'm thinking about it. I'm expecting. What am I getting? Am I getting the right thing? Do I feel motivated to keep on putting the kind of effort which is required to achieve those goals? Here comes the valence. My dear students, valence, V, इस सिचुएशन के अंदर, इस थ्योरी में, valence, इनका कहना यह है कि हम इसको भी असेस करते हैं, our assessment of anticipated value of various outcomes or rewards. ये जो कुछ मुझे मिल रहा है, इसकी वैल्यू क्या है? मैं इसकी मिसाल देता हूं. एक शख्स जिसकी सैलरी 80,000 है, उसकी सैलरी में अगर 3,000 रुपए की इंक्रीमेंट लगा दी जाए या उसको 3,000 की इंक्रीमेंट मिले, आप मुझे बताइए कि उसकी वैल्यू, वैलेंस, उस 3,000 इंक्रीमेंट की वैल्यू उस शख्स के लिए जिसकी 80,000 सैलरी है, probably not much. He will not value this kind of reward very high. So valence is low. हां, इस शख्स को जिसकी सैलरी 80,000 है, you give them recognition. You announce in the organization best manager award. Yes, that is more valuable to this person. अब एक दूसरी एग्जांपल ले लीजिए. एक शख्स जिसकी सैलरी 10,000 है, उसके लिए 3,000 रुपए की इंक्रीमेंट की वैल्यू हाई है. इट्स 1/3 ऑफ द सैलरी. इस थ्योरी के अंदर वैलेंस का जो फैक्टर है, दैट इज द वैल्यू सिस्टम अबाउट द रिवॉर्ड, अबाउट द आउटकम, एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन टू पर्सन. जैसे मैंने कहा ना कि एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर,
उसके लिए ये ज्यादा वैल्यूएबल होगा कि आप उसको किसी ट्रेनिंग पर भेजकर एक नया टूल उसको सिखा दें, कोई नई टेक्नोलॉजी से उसको फेमिलियर कर दें। हो सकता है कि उस ट्रेनिंग पर 30,000 रुपए खर्च होते हों, लेकिन वो ट्रेनिंग लेने के बाद he or she would feel more valuable, and this training has more high value of valence for this particular person as compared to giving him 5 or 8 or 10,000 rupees as a bonus. बोनस भी ठीक है, लेकिन वो जो ट्रेनिंग का पार्ट है प्रोफेशनल्स के लिए, टू कीप देम एलिवेटेड, टू कीप देम एनर्जाइज्ड, टू कीप देम मूविंग हायर इन द कैरियर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आइए इसको कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं। हमने कहा था आई विल फील, यू विल फील, वी विल फील मोटिवेटेड। कैसे? वी विल कंपेयर द एफर्ट टू आवर परफॉर्मेंस, एफर्ट, परफॉर्मेंस, आउटकम एंड द वैलेंस। अब जो एफर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमें मोटिवेटेड रखने के लिए काफी होनी चाहिए, वो नेचुरली किसी ना किसी एनवायरमेंटल कंडीशन में, किसी वर्किंग कंडीशन के अंदर ही आप काम कर रहे होंगे ना। और फिर देखिए आपकी एबिलिटी क्या है। आर यू गुड in doing that kind of job? Have you got the training enough? Are you able? Do you know how to do that? And naturally, ability and the working condition also affect the kind of effort you're putting in. So motivation is dependent on the effort and performance relationship and the performance to the outcome relationship. And whatever you are performing, it may be giving outcome number 1, outcome number 2, outcome number 3. There could be more than one outcome. And every outcome has a valence value. जैसे मैंने कहा, ट्रेनिंग पर भेजना उसकी वैलेंस वैल्यू और है, उसकी वैलेंस कुछ और है। 10,000 की सैलरी वाले को 3,000 रुपए उसकी परफॉर्मेंस की बेस पर 3,000 रुपए इंक्रीमेंट देना, इस आउटकम की वैलेंस वैल्यू कुछ और है। सो इट्स ए कॉम्प्लेक्स फिनोमेना एंड पीपल कीप ऑन रिलेटिंग एफर्ट, परफॉर्मेंस एंड आउटकम टुगेदर एंड पुट ए सर्टेन वैल्यू टू दीज रिवॉर्ड्स। अच्छा, आप ये कहेंगे कि ये जो वैल्यू है या ये जो वैल्यू सिस्टम है, कैन इट बी नोन? कैन वी पुट सर्टेन नंबर्स टू इट? प्रॉब्ली नॉट। एक शख्स रिस्पेक्ट को ज्यादा वैल्यू देता है, एक शख्स फाइनेंशियल मनी मैटर्स को ज्यादा वैल्यू देता है। इट डिपेंड्स, पीपल आर डिफरेंट। यू कैन नॉट से कि दिस इज द ओनली राइट सोल्यूशन। सो एम, द मोटिवेशन, डिपेंड्स अपॉन 3 factors: E times I times V. V is the valence, I is the instrumentality, effort, performance, outcome relationship. E, environment, efforts, ability. You put it together. And in this way, we like to see out of this theory, expectancy theory, how people feel motivated. तो अजीज तलबा और तालिबात, कॉग्निटिव थ्योरी है ये। पीपल थिंक डिफरेंटली। आप जितने क्लासरूम में इस वक्त बैठे हुए हैं, अगरचे आप एक ही कैरियर के अंदर हो सकता है जाना चाहें, लेकिन आप सबका सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है। यू पुट डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। सो फॉर मोटिवेटेड बिहेवियर टू अकर, हम लर्न ये करना चाह रहे हैं कि वो कैसा बिहेवियर हो कि लोग मोटिवेटेड फील करें। दैट्स व्हाट दिस थ्योरी इज ट्राइंग टू टेल अस। फॉर मोटिवेटेड बिहेवियर टू अकर, एफर्ट टू परफॉर्मेंस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ई का फैक्टर जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंड पार्ट, परफॉर्मेंस टू आउटकम, इंस्ट्रूमेंटैलिटी, परफॉर्मेंस टू आउटकम must be greater than 0. जो मैंने परफॉर्म किया है, did it help
Was it instrumental to achieve the outcome which was required by my boss, by the office? Must be greater than 0. और तीसरा पहलू क्या है इसमें? वैलेंस. The sum of the valence, देखिए हमने कहा था ना, आउटकम नंबर 1 की कुछ वैल्यू और है, आउटकम नंबर 2 की वैल्यू कुछ और है, आउटकम नंबर 3 की वैल्यू कुछ और है. पर्सन ए के नजदीक, पर्सन बी के नजदीक कुछ और नंबर्स हो सकते हैं, बट द सम ऑफ वैलेंसेस मस्ट बी ग्रेटर देन 0. तो तीनों पहलू जो हैं, तीनों इंग्रेडिएंट, तीनों वेरिएबल्स इस इक्वेशन के पॉजिटिव होने चाहिए, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए. कितने ग्रेटर देन 0 होने चाहिए इसकी बात हम नहीं कर रहे. एज लॉन्ग एज इट इज ग्रेटर देन 0, इट्स अ पॉजिटिव नंबर, people will feel motivated. So then managers, bosses, head of the departments, factory managers must look into it. Number 1, कि मेरी एफर्ट एक ऐसी परफॉर्मेंस दे कि मैं मोटिवेटेड फील करूं. मुझे आप काम करने का तरीका सिखाएं. अगर कोई नया प्रोडक्ट आपने बनाना है, कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, नई मशीनरी लेकर आए, टीच मी, ट्रेन मी, कोच मी, दैट माई एफर्ट वुड लीड टू काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट दिस ई फैक्टर वुड बी ग्रेटर देन 0. And then my performance should also help to achieve the goals of the department. Performance, outcome. That is instrumentality. My performance is becoming instrumental to achieve the outcome. और तीसरा, जैसे मैंने कहा, फिर हर शख्स के नजदीक उस आउटकम की वैल्यू डिफरेंट है. फर्ज कीजिए हम जो लर्न कर रहे थे कि collaborative, good co-workers, flexible hours, pleasant working environment, high salary, 4 वेरिएबल्स हो गए. अब ये चारों आउटकम जो हैं, हाई सैलरी, प्लेजेंट वर्किंग एनवायरमेंट, गुड कोवर्कर्स एंड collaborative, flexible hours, people will give different valence, different value to these variables. It's perfectly okay. As long as we place a value that we feel motivated, the theory says, the theory argues that people will keep on coming, they will not leave the job, they will not leave the organization, and they will give you the best of them, and they will feel energized. That's what this theory is telling us. इसका मतलब यह हुआ कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरीज के पर्सपेक्टिव में सिस्टमैटिकली फर्स्ट वी गैदर इंफॉर्मेशन. मैंने कहा था ना, ये कॉग्निटिव बेस्ड है, प्रोसेस बेस्ड है, थिंकिंग बेस्ड है, एंड थिंकिंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. सिस्टमैटिकली वी गैदर इंफॉर्मेशन टू फाइंड आउट व्हाट एम्प्लॉइज वांट फ्रॉम देयर जॉब. लेट्स टॉक टू देम, लेट्स सिट विद देम, लेट्स गिव देम सम क्वेश्चनर, लेट्स फाइंड आउट. एंड देन नंबर 2, we clearly link the rewards to individual performance. ये बहुत जरूरी है. The one who is performing better should be given better reward. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि tangible reward. It could be tangible, it could be intangible. But performance should be related to the reward. तीसरी बात पर हम ये कह रहे हैं, can you empower, can you give a little freedom, autonomy to the employees to make decisions which will enhance expectancy perceptions. आप बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं आप सब, जब आपको काम करने की आजादी दी जाए, आजादी ऐसी जो बिटवीन रेंज हो, बिटवीन मैक्सिमा और मिनिमा हो, लेकिन मुझे इतनी आजादी तो हो ना, मैं इतना एम्पावर तो हूं कि अगर फर्ज कीजिए किसी स्टेज पर मुझे एक्स की बजाय वाई को इंट्रोड्यूस करके आउटकम मैं हासिल कर सकता हूं, तो मुझे इसकी इजाजत तो होनी चाहिए. बल्कि मुझे यह कहने का मौका दीजिए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस में इंप्लीमेंट हुए, तो ऑपरेटर्स ने, वर्कर्स ने, सुपरवाइजर्स ने
इसी बात को बहुत अप्रिशिएट किया कि हमारे मैनेजर ने इस बात की हमें इजाजत दे दी कि असेंबली लाइन पर अगर एक प्रोडक्ट फॉल्टी बन रहा है किसी भी वजह से, और हम देख रहे हैं कि इस प्रोडक्ट के फॉल्टी बनने से प्रॉब्लम होगा, तो हमारे मैनेजर ने हमें इजाजत दी हुई है कि हम असेंबली लाइन पर उस बेल्ट को स्टॉप कर सकें, उस मोटर को स्टॉप कर सकें, वी कैन मेक डिसीजन। वरना तो देखिए, हम ये सोचते थे, हम ये पढ़ते थे कि अर्ली मैनेजमेंट थ्योरीज के अंदर मैनेजर्स वर सपोज्ड टू मेक डिसीजंस, ऑपरेटर्स, वर्कर्स, नॉन मैनेजर्स वर नॉट अलाउड टू मेक डिसीजन। हम सोचते थे नहीं साहब, यू गिव योर हैंड्स, you use the machine, managers will use their mind, they will make the decision. But now we are talking, according to this theory, if you give this empowerment to the employees, they would feel elevated, they would feel energized. Equity theory, expectancy theory, दोनों cognitive based थी। आइए अब तीसरी थ्योरी को लर्न करते हैं। अच्छा देखिए, थ्योरी जब हम ये लर्न कर रहे हैं आपके पास, आपके बैग में, आपके पर्स में डिफरेंट रेसिपीज आ रही हैं कि लोग कैसे मोटिवेटेड फील करते हैं। आप इनको अपने पास रखिए, इन कॉन्सेप्ट्स को यूज कीजिए, और गिवन कंडीशन के अंदर फिर किस फॉर्मूले को, किस इंग्रेडिएंट को, किस पैरामीटर को, किस वेरिएबल को आप किस वक्त यूज करेंगे, that will be your choice. You will be a smart manager. So third theory which we would like to see in cognitive and process based is goal setting. अच्छा, goal setting का लफ्ज बजाते खुद देखिए, you set the goal. आप मुझे बताइए कि when the goal is there and you see the goal is at 2 kilometers, it's 2 hours away, it's 2 weeks away, क्या ये गोल बजाते खुद एक अट्रैक्टर के तौर पे काम नहीं करता, एक मैग्नेटिक फोर्स बन जाता है, आपको वो गोल अपनी तरफ खींचता है। अ लिटिल टेंशन, नॉट हाई टेंशन, अ लिटिल टेंशन, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव टेंशन। सो दैट्स व्हाई वी कीप ऑन टॉकिंग, सेट द गोल्स, लेट पीपल नो व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। जब आप क्लास में बैठे हुए हैं तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप कॉन्सेप्ट्स को लर्न करेंगे, अपने ग्रेड्स को इंप्रूव करेंगे, यू विल बी ए गुड प्रोफेशनल मैनेजर। यू सेट द गोल, आई लाइक टू वर्क इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। यू सेट ए गोल दैट इन 3 years आई वांट टू बी हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट। डिफिकल्ट गोल, बट यू सेट इट। सो दिस थ्योरी argues that if you focus your work and you give attention, that your actions will always be leading to certain goals. देखिए, एक्शंस तो आपको परफॉर्म करने ही है, but now these actions are related and focused to certain goals. So you mobilize your effort, you increase your persistence, and you encourage the development of those strategies which will be able to help to achieve the goals. So goal setting theory का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी सारी की सारी एफर्ट्स कुछ इस तरह से मोबिलाइज हों कि आप एनकरेज फील हों, आप ऐसी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज को लेकर आएं जो गोल्स को अचीव करने के अंदर हेल्प आपको भी करें, ऑर्गेनाइजेशन को भी करें, टीम को भी करें। यू विल फील मोटिवेटेड, you will feel energized, you will feel dynamic. I think, yes, it helps. Let's see then what else this theory expects from us. Number 1, my dear students, what is the difficulty level of the goal? आसानी से क्रॉस कर लेंगे या मुश्किल होगी? जब मुश्किल होगी, all right, I'll put my energy together. I'll put my attention together. I'll make my body dynamic. I'll make my mind dynamic. I'll process the information quick. Goal difficulty. This is the extent to which a goal is challenging and it will require higher effort. मेरा ख्याल है आप एग्री करेंगे इस बात से कि सबसे पहले आदमी सोचता है, अच्छा
ये काम मुझे करना है, इतने दिन मुझे दिए गए हैं, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ये तो मैं कर लूंगा. You feel lazy. You feel less energetic. Now, when a challenging task is given to you, so you sit together, you talk, you go on the internet, you talk to people, you find out how many different solutions to achieve and overcome that difficulty. More difficult the task is, more energized you become. अच्छा देखिए, हम फिर ये नहीं कह रहे कि ऐसी डिफिकल्टी ना हो which will be impossible to achieve. There's nothing impossible. The question is how you make yourself ready to achieve those goals. So number one in goal setting theory is, what is the difficulty level of the goal? Number two, is the goal specific? Do you know exactly what is expected out of me? और यह गोल कुछ एम्बिगुअस सा है, मुझे नहीं मालूम मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है. तो दिस थ्योरी सेज व्हेन द गोल्स आर स्पेसिफिक, ऑलराइट, द सेल्स टारगेट शुड गो अप, द कस्टमर कंप्लेंट शुड गो डाउन, द productivity level of this process should be increased by 2%. The noise level of this machine should go by 4%. You put a number. जब आप कह रहे हैं ना 4%, तो इसका मतलब यह है कि आपने गोल को स्पेसिफिक बना दिया. ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे हम कहते हैं ना कि एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नोबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट इज नॉट स्पेसिफिक. मैं कहूंगा आप कर लेंगे, आप कहेंगे अली कर लेगा, अली कहेगा रशीद कर लेगा, रशीद कहेगा बकर कर लेगा. एट द एंड ऑफ द डे नोबॉडी विल डू. सो मेक द गोल्स स्पेसिफिक. मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपकी परफॉर्मेंस 85% होनी चाहिए. दैट्स अ बॉटम लाइन. इट कुड बी 87, इट कुड बी 90, बट द थ्रेशहोल्ड हैज इंक्रीज्ड टू 85. दैट इज व्हाट द गोल स्पेसिफिसिटी. तीसरी बात, गोल्स को सेट करते हुए यह थ्योरी ये कहती है, गोल्स डिफिकल्टी, गोल स्पेसिफिसिटी, एंड नाउ द थर्ड पार्ट इज goals acceptance. Do we accept the goal? Do we feel that, all right, this is my goal? Do you feel that you need to put your effort in? Is it a kind of goal that you would like to spend your energy together? Goal acceptance. इसके फिर मुख्तलिफ तरीके हैं कि आप कैसे उसको एक्सेप्ट करवाएंगे. लीडरशिप स्टाइल्स हैं, ये भी हम पढ़ेंगे. मैनेजेरियल स्टाइल्स हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं कि आप कैसे उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे. लेकिन थ्योरी ये कहती है गोल शुड बी एक्सेप्टेड. सो इन अदर वर्ड्स, दिस इज द एक्सटेंट टू विच ए पर्सन एक्सेप्ट्स अ गोल एज हिज ओन गोल. जी मैं बिल्कुल ये काम करूंगा, आप फिक्र नहीं कीजिए, ये काम मेरा अपना काम है. जब वो कहता है ना मेरा अपना काम है, इसका मतलब ये है कि उसने उस गोल को अपना गोल बना लिया. गोल कमिटमेंट. Am I committed to it? This is the extent to which an individual is personally interested in reaching the goal. आप फिक्र ना कीजिए साहब, कस्टमर कंप्लेंट, आप यकीन कीजिएगा अब आइंदा कोई कस्टमर यहां कंप्लेन नहीं करेगा. We will make sure we are committed. We are committed to this organization and we will make sure कि इस ऑर्गेनाइजेशन की नेक नामी हमारी नेक नामी है. गोल कमिटमेंट. और आखिरी बात गोल सेटिंग थ्योरी के अंदर कि फिर फीडबैक भी मिलना चाहिए, परफॉर्मेंस फीडबैक. दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑन गोल प्रोग्रेस. ऑलराइट, 3 दिन रह गए हैं, 2 दिन रह गए हैं, 10 घंटे रह गए हैं. फीडबैक. और देखिए जैसे जैसे टाइम कम होता है, यू फील मोर एनर्जाइज्ड, यू पुट योर मोर प्रेशर इन. वो कहते हैं जी वो आखिरी घंटा जो होता है उसमें तो फिर सब लोगों की मशीनरी, सब लोगों की प्रोसेसिंग बड़ी फास्ट हो जाती है. और वैसे भी देखिए बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं कि लास्ट मिनट के अंदर हमारी काम करने की आदत है. लेकिन परफॉर्मेंस फीडबैक का फायदा ये होता है कि हमें पता चल रहा होता है कि हमने आपको 3 घंटे दिए थे, 2 घंटे खत्म हो गए, 1 घंटा रह गया.
अब आप देखिए, अपनी स्पीड को तेज कीजिए. So goals are set, and this theory says by following this methodology, people will feel motivated and your workforce will be motivated. So this theory helps you, my dear students, to motivate. Number one, that you assign specific and challenging goal. Number two, you make sure that workers will truly accept those goals, and then they will be committed. And number three, you provide frequent, specific performance feedback. मुझे पता तो चलना चाहिए ना, where did I go wrong? मैंने कौन सा टर्न सही नहीं किया, और अगर सही किया है तो मुझे अप्रिशिएशन मिलनी चाहिए. तो गोल सेटिंग थ्योरी, वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स, really motivates everyone. और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि गोल्स बजाते खुद आपको उस डायरेक्शन की तरफ खींचते हैं और आप एक ऐसे लेवल पे पहुंचते हैं कि फिर आप टेंशन फ्री फील करते हैं. गोल के अंदर बजाते खुद एक अट्रैक्टर और मैग्नेटिक फोर्स होती है. ये एक इंटीग्रेटेड मॉडल है. अब आप सब चीजों को इसके इकट्ठा मिलाकर देखिए और आप महसूस कीजिए कि ऑलराइट, you would like to get yourself motivated with the basic needs. Then we brought in the equity theory, equity and equity. Then we said, all right, expectancy theory was there. What was my effort? What was my performance? Was it instrumental? How was the outcome related to the valence? Then we talked about goal setting theory. And now we will look reinforcement theory, how we are going to reinforce our behavior to get ourselves motivated. You put them together, one theory gives you some clue, second gives you some, and in the long run, in the total way, you feel motivated. Reinforcement theory, my dear students, reinforce. It explains the role of rewards as they cause the behavior to change or remain the same over time. Positive reinforcement, नेगेटिव reinforcement. लेकिन देखिए, reinforcement का मतलब यह है कि मैंने ये काम किया था, मुझे शाबाश मिली थी. That's a positive reinforcement. मैंने ये काम किया था तो मुझे डांट पड़ी थी. नेगेटिव reinforcement. दोनों का फायदा है. पॉजिटिव reinforcement का मतलब यह है कि हम ये चाहेंगे कि हम दोबारा जब वो काम करें तो हमें फिर उस बिहेवियर को reinforce किया जाए. So in other words, a signal is there, and this signal, a particular situation, will bring in a response, my behavior. And this behavior is now related with certain consequences. Positive or negative. Positive means rewards, shabas, bucking up. Negative means punishment, demotion, increment की बजाय डिमोशन हो गई. और आखिरी बात यह है कि जो कुछ भी हमें हुआ उससे हमारा फ्यूचर बिहेवियर पॉलिश हो रहा है, फ्यूचर बिहेवियर रीइंफोर्स हो रहा है. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, वी आर बकिंग अप. नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, डोंट डू दिस, यू विल बी पनिश्ड. जब आप पनिशमेंट की आप बात करते हैं तो नेचुरली आप किसी के बिहेवियर को स्टॉप कर रहे हैं. भाई ऐसा मत कीजिए, अगर दोबारा कंप्लेन आई तो हम आपकी सैलरी को 5% डिक्रीज कर देंगे. दोबारा अगर ये सैलरी आई, आई वार्न यू, वी कैन रिमूव यू फ्रॉम द जॉब. एक्सटिंक्शन, ये भी एक रीइंफोर्समेंट थ्योरी ये कहती है कि दिस ऑल्सो वीकन्स द बिहेवियर बाय नॉट प्रोवाइडिंग ए डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस. ये डिजायरेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं है, इसको खत्म कर दीजिए. इसका मतलब यह हुआ कि हम इस थ्योरी को इसलिए यूज करते हैं कि हम एक खास बिहेवियर को एनकरेज करते हैं. वी एनकरेज ए डिजायर्ड बिहेवियर एंड दिस बिहेवियर इज एनकरेज्ड. सो यू हैव टू बी क्लियर दैट व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट इज एक्सपेक्टेड. एंड द लास्ट पार्ट इज दैट यू कैन यूज ए वेरिएबल इंटरवल्स. किसी को पर वीक सैलरी दे दीजिए, किसी को पर यूनिट सैलरी दे दीजिए, किसी को पर आवर दे दीजिए, किसी को पर मंथ दे दीजिए. Depending upon the people will feel reinforced.
My dear students, these were all those kind of theories which have been developed 30, 40, 50 years ago. But the question is, are they applicable still? Well, yes. You can learn some lessons from there. But let me share with you a theory which is applicable today and in future. May not be in Pakistan in all the organization, but maybe you can make an organization of your own. Open book management. These are some of the current issues in motivation. ओपन बुक मैनेजमेंट का मतलब यह है कि यह मैनेजमेंट खुली किताब की तरह से है. हम जो कुछ करते हैं, honest, fair, known. We make decisions together. Number one, we involve employees in workplace decisions by opening up the financial statements. देख लीजिए भाई, हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स ये हैं, लॉसेस ये हैं, रेवेन्यूज ये हैं, सेल्स ये हैं. और दूसरी बात ये कि वर्कर विल बी ट्रीटेड एज ए बिजनेस पार्टनर. काश ये सिचुएशन हो. ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जहां ओपन बुक मैनेजमेंट की पॉलिसीज अडॉप्ट होती है. वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी अनाउंस करते हैं, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि वो अपनी इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट्स भी अनाउंस करते हैं. वो अपने एम्प्लॉइज पर दे आर प्राउड ऑफ दैम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, मोटिवेशन का चैप्टर, मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट्स हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में भी अच्छे नजर आते हैं, फ्यूचर के पर्सपेक्टिव में भी अच्छे नजर आते हैं. अब सवाल यह पैदा होता है कि व्हाट कॉन्सेप्ट्स आर यू गोइंग टू यूज एज ए मैनेजर एंड व्हाट इज इट्स इंप्लीकेशन ऑन यू? वेल, इट डिपेंड्स ऑन यू. हाउ you feel motivated yourself, and look around what kind of group you are working together, how you would like to feel them motivated. But of course, all these theories, all these concepts give you some recipe. You can use a recipe of theirs, या आप अपनी recipe बना लीजिए. You are good enough, you are competent enough, you are a professional manager, I'm sure you will do a good job. Thank you very much. We will see you in the next session. Until then, Khuda Hafiz.